Everyone, a very warm good morning to my dear children. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our 20th session. I hope you all are fine and doing well there. So everyone take out your EVS textbook of 4th class and come up to the page number 30. As you know, in our last lesson, in our last class, we have started our lesson, 6th chapter, right? Clothes. So in that we have seen how does the cloth protect us and in what seasons we wear which kind of a clothes, children. Okay, like in summer season we are having 3 main seasons, right, in India, that is summer season, winter season and rainy season. In summer season we wear the cotton clothes, and in the winter season we wear the woolen clothes, and in the rainy season we wear some different kinds of a cloth which protect us from the rain, like raincoat, and we use the umbrella even. Okay, so now today we have to see clothes of different state, cloth of different state. So children, before this I would like to ask you that have you ever seen people's wearing different kinds of clothes? Okay, yes, suppose example India, if somebody is living in India, Hyderabad, okay, so in Hyderabad people wear some different clothes, like our parents, our father and mother, our mother wears sari and our father wears pant and shirt, right children. Now if somebody is living in Gujarat, अगर वो गुजरात या राजस्थान में है तो उनके क्लोथ्स किस तरह के होंगे? They'll be wearing some different kinds of a cloth, right? And if it is a Muslim, then they wear different clothes. If it's Hindu, they wear the different clothes. If they are staying in Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, वहाँ पर एक different होंगे. If they are staying in Kashmir, they wear the different clothes, right children? So what the people do? People wear the different clothes according to their states also. Okay, people क्या करते हैं, अपने state के हिसाब से भी अपने अपने clothes रहते हैं उनके. okay, एक तो उनका religion, उनका जो culture है उसके हिसाब से रहेंगे, as well as एक अपने state के हिसाब से वो लोग clothing करेंगे. okay, now let's see what kind of a cloth people are wearing in different states. It's little quite interesting, right children? ये बहुत ही थोड़ा सा interesting है कि हम ये पढ़ रहे हैं आज के कौन से स्टेट्स में कौन से टाइप के क्लोथ्स वो पहनते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. यू हैव टू कीप योर फिंगर ओवर देयर. फर्स्ट बेट, क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट स्टेट. क्लोथ कहाँ के? डिफरेंट स्टेट के, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद एक्सेट्रा चिल्ड्रन. ओके, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. सो चिल्ड्रन, इंडिया क्या है? एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल स्टेज, डिफरेंट मैरिड लैंग्वेजेस हैव बीन स्पोकन. ओके, एंड डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, कई सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कपड़े भी डिफरेंट पहनते हैं. ओके, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनका रिलीजन अलग होता है. तो ये सारा कहाँ पर प्रेजेंट है? इंडिया में ही प्रेजेंट. सो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स लिव हियर. यहाँ पर क्या करते हैं पीपल? अपने अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई सारे रिलीजन्स हैं चिल्ड्रन जो यहाँ पर इंडिया में प्रेजेंट है. दे वियर वेरी स्पेसिफिक ड्रेसेस. एंड वो लोग क्या करते हैं? बहुत ही स्पेसिफिक, उनका एक पर्टिकुलर ड्रेसेस होते हैं. जैसे एज वी आर द मुस्लिम, राइट चिल्ड्रन, एज वी आर मुस्लिम, सो व्हाट वी डू? वी वियर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए क्लोथ. जैसे अवर father and grandfather and all, what they wear the pant, shirt and kurta, pajama, something. Okay, and our mom wears what? Sari. But if you go to some any other religion, if you see, so what they wear? Hindu people, they wear some different kinds of clothes children. Okay, so सबके अपने अपने एक particular cloth होते हैं. These dresses are so specific that a person wearing any of those dresses can be identified as to which state of India does he belong. Okay, जो टाइप की वो लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं उस ड्रेसिंग से हम पता लगा सकते हैं कि मुझसे ईजिली आइडेंटिफाइड होगा, मालूम हो जाता है कि वो पर्सन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है. ओके, दीज ड्रेसेस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल ड्रेसेस. एंड उस टाइप के ड्रेसेस को हम बोलेंगे traditional dresses. Okay, there are some traditional dresses of men and women of different states of India. Okay, now we have some here below, you can see, I'll be marking, wait here, these are some dresses. यहाँ पर कुछ traditional dresses है जो इंडिया के states के लोग पहनते हैं. okay, different states के लोग different पहन रहे हैं. okay children, now
Let's see in which states what kind of a cloth they are wearing, children. Okay, so the first one, men in Rajasthan wear angarakha with a colorful turban. Okay, so men in Rajasthan, राजस्थान के जो आदमी लोग होते हैं, I'm not talking about the ladies children, I'm talking about the जेंट्स. ओके, जो आदमी होते हैं वो राजस्थान में क्या पहनते हैं, अंगारखा पहनते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अंगारखा चिल्ड्रन? अंगारखा इज कॉल्ड, दिस ड्रेस इज कॉल्ड अंगारखा. ओके, जिसके शूजेस पॉइंटेड होते हैं एंड जिसका शर्ट जो है स्कर्ट टाइप राउंड राउंड होता है एंड वन पटियाला टाइप वो लोग का सलवार होता है. ओके, सो उसको अंगारखा बोलेंगे. एंड कलरफुल टर्बन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्बन? जो शमला होता है उसको हम टर्बन बोलेंगे. ओके, सो वो पगड़ी टाइप पहनते हैं वो लोग. द मैन ऑफ गुजरात वेयर चूड़ीदार एंड जैकेट. सो गुजरात के लोग क्या पहनते हैं, चूड़ीदार भी पहनते हैं एज वेल एज ऊपर से जैकेट भी पहनते हैं. ओके, यू कैन सी हियर ही इज़ वेयरिंग द जैकेट. लुंगी इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रेस ऑफ मैन इन तमिलनाडु. सो व्हाट डू यू मीन बाय द लुंगी चिल्ड्रन? दिस ही इज़ वेयरिंग, नो, you can see here just now I am marking, see this is called lungi children. Okay, who wear this? The people, the men of Tamil Nadu. Okay, जो आदमी होते हैं तमिलनाडु के वो लोग इस तरह का लुंगी पहनते हैं. So what we knows here, we are knowing that what kind of a clothes they are wearing in particular state. So in Tamil Nadu they wear this dress children. Okay, now in West Bengal and Uttar Pradesh, dhoti kurta are common dresses of style of wearing them in different. So here what he is telling here के dress of in West Bengal and Uttar Pradesh. West Bengal and Uttar Pradesh में क्या होगा, धोती कुर्ता बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टाइल है. किसका है चिल्ड्रन यहाँ पर? wearing them in different. Okay, so this धोती कुर्ता is very common in Uttar Pradesh. Now कुर्ता पैजामा और कुर्ता लुंगी एंड टर्बन इज़ वर्न इन पंजाब. पंजाब में क्या पहनते हैं लोग? कुर्ता पैजामा पहनते हैं एंड कुर्ता लुंगी भी पहनते हैं एज वेल एज टर्बन के साथ वो लोग पंजाब में पहनते हैं. ओके, द मैन ऑफ बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा ऑल्सो वियर धोती कुर्ता. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट इज टेलिंग है कि जो पीपल होते हैं, जो मैन आदमी होते हैं बिहार के, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा. What are these children? All these are the names of a states. Okay, जो इंडिया में states present है उसके वहाँ के लोग जो है ये क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं. You can see here this is धोती and कुर्ता children. Okay, now मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन वेयर साड़ी. सो जो इंडियन वुमेन्स जो होते हैं, लेडीज़ जो लोग रहते हैं इंडिया में, वो लोग साड़ी पहनते हैं. यस और नो? मोस्ट ऑफ देम दे वेयर साड़ीज ओनली. ओके, सपोज इफ़ यू गो टू इंडिया, इन इंडिया हैदराबाद ऑल्सो वी वेयर द साड़ीज, राइट? सो मोस्ट ऑफ देम वेयर साड़ी. इट इज़ नोन एज द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन. ओके, साड़ी क्या है चिल्ड्रन? एक नेशनल ड्रेस है इंडियन वुमेन का. And let me tell you one thing, the length of the sari varies from states to states children. Okay, in one place like suppose example Maharashtra and Karnataka में साड़ी का लेंथ होता है 8 मीटर. so वैसे if you go to the Bengal then there will be length of the sari will be 5 meter or something, 5 to 6 meters children long. Okay, now the other popular dresses and women are, now just now we have seen के men के popular dresses क्या है कि धोती कुर्ता and लुंगी and कुर्ता, jacket and धोती. Okay, and अंगारखा, चूड़ीदार and what we have Punjabi people they wear turbans and all. Okay, now let's see about the women. The other popular dresses as women are सलवार कमीज़ एंड दुपट्टा इन पंजाब. नाउ पंजाब में वुमेंस के ड्रेसेस क्या होते हैं चिल्ड्रन? सलवार कमीज़ होता है. ओके, इट मीन्स शर्ट एंड सलवार होता है एंड इवन दुपट्टा भी होता है, ओढ़नी. ओके, घाघरा विथ कटचली इन राजस्थान. राजस्थान में वो क्या पहनते हैं? घाघरा पहनते हैं. लहंगा चोली इन गुजरात एंड घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी इन हरियाणा. ओके, हरियाणा में वो धोती घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी पहनते हैं इन हरियाणा. ओके, सो दिज आर द नेम्स, दिज आर द क्लोथ नेम्स व्हाट द वियर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट्स चिल्ड्रन. ओके, सो अभी हम क्या पढ़े हैं कि स्टेट्स में वो लोग कौन से टाइप का ड्रेसिंग करते हैं. सो बाय सीइंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड विच स्टेट्स दे बिलोंग्स टू, राइट? अगर कोई राजस्थानी पर्सन, ओके, अगर कोई राजस्थानी मैन या वुमेन अगर हमारे स्टेट में आ जाए, हम उनको ईजिली पहचान सकते हैं. वाई? बिकॉज क्यों पहचानेंगे हम? बिकॉज वो लोग राजस्थानी ड्रेसिंग करके आएंगे. ओके, दे विल बी वेयरिंग व्हाट? अंगारखा एंड ऑल्सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट दे केम फ्रॉम द राजस्थान.
सो आवर क्लोथ्स ऑल्सो डिफाइनर्स टू विच स्टेट्स वी बिलोंग्स टू, हमारे कपड़े भी डिफाइन करते हैं कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं चिल्ड्रन. ओके, नाउ come up to the answers. These bit you have to write one time in notes children. Okay, put down the lesson name and second bit answer the following questions. First one, why do we wear clothes, हम clothes क्यों पहनते हैं? We wear clothes to cover our body, body को cover up करने के लिए हम clothes पहनते हैं. Second question, what kind of clothes do we wear in summer, summer में कौन से टाइप के क्लोथ पहनेंगे? summer meaning गर्मी children. Okay, we wear cotton clothes in समर, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं चिल्ड्रन. ओके, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर? थर्ड क्वेश्चन, विंटर में हम कौन से टाइप के क्लोथ पहनते हैं? वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारे बॉडी को व्हाट दे डू चिल्ड्रन, दे कीप्स अवर बॉडी वेरी वार्म. Fourth one, why do people wear different dresses in different parts of the country? Why people different they wear different kinds of clothes in different parts of the country? Why they wear children? Because they wanted to identify as to which states they belongs. So people wear different dresses to make them identified as to which states they belong. वो लोग अलग अलग ड्रेसिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डिफाइन करना चाहते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं. सो वो जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वो इस स्टेट्स के कपड़े पहनते हैं वो. फिफ्थ वन, व्हाट इज़ द ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ पंजाब? पंजाब में वुमेन लेडीज़ का ड्रेस क्या है? द ड्रेस ऑफ वुमेन इन पंजाब, सलवार कमीज़ एंड दुपट्टा. पंजाब में ड्रेस होता है सलवार कमीज़ एंड दुपट्टा चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज़ द ड्रेसिंग ऑफ व्हाट, विच पीपल? पंजाबी पीपल, लेडीज़. नाउ सिक्स्थ वन, व्हाट इज़ द कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया? इंडिया में कॉमन ड्रेस क्या है चिल्ड्रन? इन इंडिया साड़ी इज़ द कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन चिल्ड्रन. ओके, सारे लेडीज़ का जो कॉमन ड्रेस होता है वो साड़ी एक है. विच स्टेट्स? इन इंडिया. ओके, व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? Usually we use this word at the time of school. Yes or no children? Okay, uniform. Your teacher say wear proper uniform, clean uniform, wash your uniform, etc. So what do you mean by this uniform? Uniform is a kind of clothes wear by people who do special jobs. यूनिफॉर्म क्या होता है? ऐसे काइंड का क्लोथ है जो उसको कौन पहनते हैं? जो स्पेशल जॉब्स करते हैं, जैसे डॉक्टर इज़ देयर, सो वो उसका एक यूनिफॉर्म होता है, एप्रन. ओके, लॉयर है तो उसका एक यूनिफॉर्म होगा ब्लैक कोट. एंड इफ़ वी आर ए स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट हैं ना, हमको स्कूल जाना है, देन वी विल बी हैविंग अ यूनिफॉर्म ड्रेस चिल्ड्रन. ओके, so these are the answers. You have to write these answers one time in your notes and keep it ready children. Okay, we will do the continuation of our lesson in our next video. Till then, have a nice day and take care everyone.